प्रॉब्लम ये है कि अगर अपील 4 महीने के बाद फाइल किया ऑर्डर मिलने के बाद, देन रीजन कितना भी सफिशिएंट हो विच जिसकी वजह से आप अपील नहीं कर सके, दो तो सेक्शन 1074 says that the appellate authority cannot condone the delay beyond 1 month, that is in toto if the appeal is filed after 4 months. What to do for that we'll see on the subsequent slides which I have prepared. Now, how to count a month? That instead of going in this theoretical thing, we would go further, proceed further. When the appeal can be treated as filed. Earlier, when the assessment orders or any order was not there on the GST portal, but there was a delivery by post, etc. At that time, this explanation to Rule 108, which was saying appeal shall be treated as filed only when the acknowledgement in form GST appeal 2 indicating appeal number is issued. And when that acknowledgement will be issued, that after filing an appeal, one must give a certified true copy of the order against which the appeal has been filed. That was a condition. This was correct so far as the appeal was to be filed physically. There was no provision to file the appeal in the electronic way. Now the question was, if the certified true copy of the appeal order is not furnished in 7 days, तो 7 दिन के बाद अगर वो फाइल किया तो ये माना जाएगा कि अपील फाइल किया 7 दिन के बाद. अभी देखिए, अगर आपने अपील फाइल किया ऑन 120th डे, एक्चुअली फाइल्ड अपील ऑन 120th डे, और उसके बाद 7 दिन में अगर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अगर फाइल किया तो अपील माना जाएगा कि 120 दिन के अंदर किया, और 1 महीने का डिले के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले. लेकिन अगर 7 दिन के बाद किया तो 120 दिन के ऊपर हो जाएगा, और ये सवाल आएगा कि डिले कंडोन नहीं होगा. इसीलिए पूरी करने देखो, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम इशू. तो इसीलिए जो बाद में ये एक्सप्लेनेशन टू रूल 108 एंड बेसिकली दैट 1083 वाज अमेंडेड. ये रूल जो अमेंड हुआ उसमें ऐसे हुआ कि जो ऑर्डर पोर्टल पे अवेलेबल है, in that case certified true copy of the order, certified true copy of the order is not required to be filed, because everyone knows कि अगर ऑर्डर पोर्टल पे है तो सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत नहीं, ये तो है ही. लेकिन ऑर्डर अगर पोर्टल पे नहीं है तो अपील फाइल ही नहीं किया जा सकता. तो इसीलिए ये सवाल ही नहीं आएगा कि सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जाके देने पड़े. इसीलिए ये 1083 में अमेंडमेंट लाया गया बाय द नोटिफिकेशन नंबर जो मैंने ये सेकंड बुलेट पे दिया हुआ है. और आफ्टर फाइलिंग ऑफ द अपील, इमीडिएटली देयर आफ्टर this form APL2, there was a provision to issue that form, and in that case appeal will be treated as filed. Okay. जब ये इशू आया था वेदर फाइलिंग ऑफ ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी इज मैंडेटरी,
तो इन दैट केस ओडिशा हाईकोर्ट के सामने ये केस आया था जो आपके सामने है स्क्रीन पे. इन दैट केस इट वाज सेड कि ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, तो उसमें अगर लैप्स हो गया, अगर ये फाइल नहीं की गई सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, then in that case appeal cannot be dismissed for non filing of certified true copy. That can be accepted even later on, and that appeal can be said to have been admitted. Now friends, issue is that why there is basically a limitation. What is the purpose? As I said at the beginning, while interpreting any law or overcoming any difficulty, we must know what is the object behind putting a particular provision under the act. इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि ये जो लिमिटेशन है ये कहाँ से आया. Of course, the basic origin of this limitation provision is from section 3(1) of the Limitation Act, which provides that subject to section 4 to 24 of the Limitation Act, every suit, appeal and application made after the prescribed period shall be dismissed. Means ये लिमिटेशन के बाद अगर अपील फाइल किया गया तो अपील डिसमिस किया जाएगा. एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, although limitation has not been set up as a defense by the opposite side. Means the lawmakers ये चाहते हैं कि every appeal or action under the law shall be taken within the time granted, not whenever you want it. अभी ये क्यों किया गया लिमिटेशन एक्ट में? तो ऑब्जेक्ट ये है टू कंपल पीपल टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विद इन टाइम. Otherwise, that remedy available to you to do away the injustice made to you by some other person, that may be a government, that may be a private person. In that case, by way of public policy, such suit or appeal will be barred. Means you cannot file such appeal. Now, why this limitation? ये लिमिटेशन इसलिए है कि एनीवन, अगर हमने ये सोचा कि अगर हमारे ऊपर अन्याय हुआ है तो कभी भी जाके मैं अपील क्यों ना कर सकूं, तो उसका रीजन ये है कि रीजन ये होता है कि अगर किसी ने मेरे राइट्स वायलेट किए हैं या बाय फोर्स पोजीशन लिया है, अगर मैंने एप्रोप्रिएट टाइम पे अपील नहीं किया या सूट दाखिल नहीं किया, तो दैट अपोजिट पार्टी टेक्स पोजीशन अकॉर्डिंगली. नेचुरली वो समझेगा कि मैंने मेरा क्लेम छोड़ दिया है, तो दैट अनदर पार्टी एक्ट्स एज इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और दैट राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय हिम. इसीलिए ये लिमिटेशन एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट चाहता है कि जो भी एक्ट आपको लेना है दैट मस्ट बी टेकन इन अ रीजनेबल टाइम एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24. क्योंकि जब ये अपील या एक्शन अगर लेट किया गया और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया कि आई वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम फाइलिंग दैट अपील इन टाइम, then the authority or court may condone the delay in filing that appeal. Now, while explaining this delay, there are certain provisions which are beneficial provisions. कि अगर लास्ट डे पे अगर कोर्ट क्लोज है फॉर एनी रीजन, कभी कोई भारत बंद या कोई दंगा फसाद हो गया तो भी हो सकता है, या while काउंटिंग द लास्ट डे अगर वो संडे आता है या पब्लिक हॉलीडे आता है, तो इन दैट केस ऑन द वेरी नेक्स्ट डे अगर अपील किया गया तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फाइल्ड लेट. तो इसीलिए मैंने ये लास्ट दो जो बुलेट है वहां लिखा है कि अगर लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान है कि अगर लास्ट डे कोर्ट या अथॉरिटी का ऑफिस बंद है तो नेक्स्ट डे हम ये फाइल कर सकते हैं,
तो व्हाट अबाउट आवर पोर्टल, जो जीएसटी पोर्टल आपने देखा है, इवन इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न फाइलिंग में हमने देखा हुआ है कि पोर्टल पे जो ग्लिचेस है, तो उसके ऊपर अगर वो पोर्टल बंद है या डेड है, कई बार हमने देखा हुआ है, तो क्या होगा, वहां क्यों नहीं प्रावधान, क्यों हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है कि ये जो लेट हो रहा है वाइल फाइलिंग दी रिटर्न इन फॉर्म 3B मंथली एटसेट्रा, तो ऑटोमेटिकली क्यों नहीं ये पीरियड एक्सटेंड किया जाता है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि लिमिटेशन एक्ट की सामने रखते हुए ये ऑटोमेटिक प्रावधान चाहिए कि पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट सेज delay can be condoned if sufficient cause is given. That is why application for condonation should be drafted carefully. बहुत जगह मैंने देखा है कि जूनियर प्रैक्टिशनर्स जब एपेलेट अथॉरिटी के सामने आते हैं तो उनके दिमाग में भी नहीं रहता है इसका इम्पोर्टेंस कभी कभी कि जब डिले होता है तो पहली ड्यूटी प्रैक्टिशनर की ये है कि along with such appeal एप्लीकेशन जाना चाहिए कि मैं विद इन टाइम ये अपील या सूट क्यों नहीं कर सका, और ये रीजनिंग प्रॉपर केयर लेते हुए करना चाहिए. अदरवाइज द अथॉरिटी कैन से कि जो रीजन आपने दिया है फॉर नॉट फाइलिंग द अपील और एक्शन टेकिंग एक्शन विद इन टाइम, आई एम नॉट कन्विंस विद दिस, सो आई एम रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले. तो ये ड्राफ्टिंग प्रॉपर होना चाहिए. अभी सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ये सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट क्या है कि अगर फॉर फाइलिंग अपील और फाइलिंग एनी सूट, अगर हमने गलती से गलत कोर्ट या गलत अथॉरिटी के पास हमने ये अपील या सूट दाखिल किया, इन गुड फेथ, हमें मालूम नहीं था कि वो अथॉरिटी गलत है, हमें जाना चाहिए कौन सी सही अथॉरिटी हमें मालूम नहीं था, और बाद में ये हो सकता है कि दैट अथॉरिटी में टेल अस कि हमारे पास आप रॉन्गली फाइल किया, तो यू गो टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी एंड फाइल द अपील देयर. देन इन दैट केस वो जो डिले रहता है कि वो लिमिटेशन के बाद अगर 2 साल भी हो, जब कभी आपको मालूम हो वो अथॉरिटी बताएगी कि हमारे पास जो फाइल किया वो गलत किया, तो वो जो डिले का पीरियड जो है वो कंडोन किया जाएगा, माफ किया जाएगा, और दैट विल बी ट्रीटेड एज इफ फाइल्ड इन टाइम, और अपील और सूट कैन बी हर्ड ऑन मेरिट. इसके लिए ये जो जजमेंट मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है एमपी स्टील कॉर्पोरेशन का, इसमें यही है कि अगर हम कोई रेमेडी रॉन्ग अथॉरिटी के पास लेते हैं और बाद में अगर ये अथॉरिटी ने पॉइंट आउट कर दिया या आपको खुद मालूम हो गया कि मैं गलत अथॉरिटी के पास ये परसू कर रहा हूं, तो एमपी स्टील कॉर्पोरेशन में बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं. इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि 3 days बिफोर I appeared in local body tax matter. I had filed that writ petition. जहां फाइलिंग अपील के लिए 15 days का टाइम है, लेकिन वहां कोई सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मैंने चैलेंज की थी, इसीलिए ऑब्वियसली वो रिट पिटिशन लेट फाइल किया गया था. तभी जब कोर्ट, हमने देखा हुआ है डे इन डे आउट जब हाईकोर्ट में अपीयर होते हैं, कि ऐसे केस में अगर हाईकोर्ट भी कहता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मीन्स इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द रिट पिटिशन, एंड सो वी आर डायरेक्टिंग यू टू गो बैक टू द प्रॉपर appellate authority under the respective law, but the delay caused